So now see here, भाई मेरी आवाज आ रही है आप सबको? All of you getting my voice? ओके ओके, तो पिक्चर यहाँ पे बंद हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो आवाज सॉरी ओके. सो नाउ हियर terminology of accounting. So terminology of accounting is very important part for your this chapter, okay? Because this terminology is continue forever, okay? जब तक ये आप अकाउंट्स पढ़ोगे तब तक ये सारे जो जो नाम है वो आने वाले, ओके? दैट इज कॉल्ड टर्मिनोलॉजी, ओके? सो व्हेन वी गो फॉर नेक्स्ट चैप्टर्स, इन प्रीवियस चैप्टर्स द सेम वर्ड इज रिपीटेड, ओके? तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है. टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? व्यू पॉइंट ऑफ मार्क्स, व्यू पॉइंट ऑफ नॉलेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके? तो आपको टर्मिनोलॉजी ध्यान से आपको समझना है कि जो वर्ड है वो कौन से वर्ड्स जो बार बार यूज होते हैं अकाउंट्स में. So when we record the entries in books of account, that words is repeatedly used in books of account. They are called terminology. Okay, so terminology is very important for you. Okay, so first one that is given here, business transaction. Okay, so what is called business transaction? कि जो when we purchase goods, that is called business transaction. Okay, when we sold goods, they are called business transaction. Okay, when we purchase raw material from the supplier, they are called business transaction. Okay, so business transaction is most important terminology of this account. Okay, because when we purchase goods, then it is called business transaction. When we sold goods, it is called business transaction. Okay, in short, transaction means जो आप लेन देन करते हो business में, okay, that is called transaction. Okay, when you suppose purchasing furniture on credit, they are also called business transaction. Okay, when we sold goods, in the business, they are also called business transaction. Okay, and suppose if any customers came to your office and at that time we are purchasing some snacks, okay, for her, that sorry, for him, then it is also called business transaction. Okay, so business transaction is the most important terminology of accounting, so it is used repeated time, so that's why it is important. So that is called business transaction. Okay, uh, business transactions may be on cash or credit also. Okay, business transaction is maybe on cash or credit also. For example, you purchase furniture on cash, giving check of rupees 1 lakh and purchase furniture for rupees 1 lakh. That is called business transaction. Okay, when you purchase furniture on cash, that is also called business transaction. When you purchase furniture on credit, okay, suppose 50% amount you are paying in cash and 50% amount paid by check, okay, and 50% amount is unpaid. 50% amount is unpaid. That unpaid amount is also called business transaction. Okay, for example, suppose you purchase a furniture of rupees 1 lakh, okay, 50% amount paid in cash, 50% amount paid in cash, and 50% amount that is the unpaid. Okay, that unpaid amount is also business transaction. So transaction may be in cash or may be on credit. ओके, तो ट्रांजेक्शन्स दोनों तरह से हो सकता है, कैश भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है. ओके, बट जो आपने क्रेडिट में परचेस किया है दैट यू पे इन नियर फ्यूचर. ओके, तो आपको बहुत ही कम टाइम में वो जो अमाउंट है वो पे करना होगा विद इन 90 डेज. ओके, जनरली इन बिजनेस देयर इज अ साइकिल ऑफ 90 डेज. ओके, generally in business there is a cycle of 90 days. So when we sold goods, at the same time we are not getting cash or check. Okay, when we sold goods in business, at the same time the amount is not received. Okay, so that amount is received within a 90 days, depends on agreement of between both the party. Okay, you are selling the goods and opposite party is purchasing the goods, depends on agreements, what on what basis of agreements you have sold the goods. Okay, suppose there is agreement of 10 days, 20 days, 30 days, according to that you have to make the payment. Okay, so there is always agreement between the seller and dealers. Okay, so those who, for example, Maruti company is manufacturing car. Okay, they are not sell directly. Okay, they are sell through dealers. Okay, so there is always agreement between the manufacturers and dealers or customers or retailers. Okay, there's always a contract between agreement between the manufacturers and dealers and customers or retailers. Okay, so depends on agreement. What means payment is received within 40 days, 50 days. Maximum there is a 90 days. Maximum cycle is for credit, that is a 90 days. Okay, so maximum cycle कितने की होगी?
90 डेज की होगी. 90 डेज से आप ज्यादा पेमेंट बाकी रख सकते नहीं हो. एंड इफ यू आर नॉट पेइंग अप टू 90 डेज, then your reputations will be lose. Okay, and if you are not paying the payment in 90 days, okay, up to 90 days, then your reputations will be lose. Okay, so there is an agreement between the seller and the buyer how many days they are giving credit to the customer. Okay, so depends on that agreement, the customer is giving payment back to the manufacturers. Okay, so now credit transactions also business transaction. Cash transactions is a business transaction, but credit transactions is also called business transaction. So when we purchase goods on credit, that is also called business transaction. When we sold the goods on credit, that is also called business transaction. Okay, so both are called business transaction. Next one is that is the event. Okay, next one is event. Okay, what is event now? Suppose we purchase goods at rupees 10,000. There's the expense of wages rupees 200. There's transportation cost rupees 500. So 10,700 is our cost. Okay, we sold at rupees 14,000. So difference amount is your profit. Okay, that is called event. Different amount is called profit, and that is called event. Now I repeat: purchase goods at rupees 10,000. परचेज किया गुड्स कितने में 10,000 में. ओके, प्लस वेजेस. वेजेस क्या होता है कि जो आपने रॉ मटेरियल जो आपने गुड्स परचेज किया, तो बाय बाय लॉरी आता है जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, दैट इज कॉल्ड. तो जो लॉरी आता है तो लॉरी में रखने का जो चार्जेस है, फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज अ 500 kg ऑफ राइस. ओके, तो उसमें क्या होता है कि जो बोरे होते हैं वो उचक के आपको ट्रक में अदरवाइज लॉरी में रखने होते हैं. ओके, तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया. तो वहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 500 बोरीज, ओके, अदरवाइज 1000 बोरीज, तो उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है कि गोडाउन में से उचक के आपको ट्रक में जो बोरी है वो रखनी होती है. दैट अगेंस्ट दैट यू टू पे वेजेस. ओके, तो आप जो वेजेस पे कर रहे हो प्लस ट्रांसपोर्टेशन, दैट विल बी एडेड टू द योर कॉस्ट. ओके, सो 10,000 प्लस 200 प्लस 500, that is a 10,700. And suppose if you sold at rupees 14,000, so here difference amount is that is a 12, 13, 14. Okay, 3,300 is your profit, and that is called event. Okay, that is called event. Okay, so your first terminology, that is business transaction. Second terminology, event. Okay, that is finished. Okay, now third one is most important, and that is a capital. Third one is most important, that is a capital. Okay, now what is capital? Anyone? Boys and girls, कैपिटल क्या होता है? तो सबको शायद पता होगा. Anyone? What is meaning of capital? हाँ? Anyone next? कैपिटल क्या होता है? Anyone? What is capital? हाँ? 2 मिनट बच्चे आ गए, अभी तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ. ओके, सो आई एम टेकिंग अटेंडेंस. तब तक आप सोच के रखो व्हाट इज कॉल्ड कैपिटल. ये डीजे पटेल कौन है? डोंट राइट शॉर्ट फॉर्म. ओके, डीजे पटेल कौन है? डोंट राइट शॉर्ट फॉर्म. आपका अटेंडेंस में फिर तकलीफ होगी मेरे को. ओके, राइट योर फुल नेम प्रॉपरली. आपका नाम लिखना है, सरनेम लिखोगे चलेगा. ओके, योर नेम इज इंपॉर्टेंट. ये डीजे पटेल मत लिखना. ओके, व्हाट फॉर डी? एनीवन जिसका नाम है वो बोलो. डी फॉर ओके. नाउ व्हाट इज कैपिटल हियर? हम्म, हाँ बोलो. No, no. When we started new business, at that time, whatever assets and liability you have brought in the business, that is called capital. Okay.
जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे आप जो भी कैपिटल, जो भी एसेट्स लाते हो, जो भी लाइबिलिटी लाते हो, दैट अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल. एग्जाम्पल, एसेट्स यानी कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लोन. ओके, लोन भी आप ले सकते हो बैंक से नया बिजनेस इसलिए. ओके, तो आप लाइबिलिटी भी ला सकते हो, एसेट्स तो आप ला सकते हो, प्लस लाइबिलिटी भी आप ला सकते हो. ओके, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. That is called capital. So when we started new business, at that time we have brought assets and liability in the business. That whole amount is called capital. Okay, तो उसको क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे. सो एसेट्स क्या होगा आपका? लैंड भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, कैश बैलेंस भी हो सकता है, बैंक बैलेंस भी हो सकता है. ऑल दैट अमाउंट इज कॉल्ड एसेट्स. ओके, और लाइबिलिटी यानी सपोज आपने बैंक से लोन लिया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए तो बैंक से आपने लोन लिया. दैट एक्स्ट्रा अमाउंट फ्रॉम लोन फ्रॉम द बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल. ओके, तो एसेट्स भी हो सकता है और लाइबिलिटी भी हो सकता है. ओके, सो व्हेन वी स्टार्टेड न्यू बिजनेस विद द एसेट्स एंड लाइबिलिटी, दैट अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल. ओके, आपके भाई वीडियो बंद कर दो, सॉरी माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो आपके, ऑल ऑफ यू. माइक बंद कर दो आपके, यहाँ से दिख रहा है कौन से जिसके माइक ओपन है. ओके, जिसका भी माइक ओपन है वो बंद कर दो, क्योंकि बाद में आवाज क्लैश हो गई आपकी, आवाज प्रॉपरली सबको नहीं आएगा. ओके, वेरी गुड. सो नाउ कैपिटल में यानी जो बिजनेस, जब बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. ओके, दैट होल अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल. ओके, नेक्स्ट वन इज, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्राइंग. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ड्राइंग. ओके, नाउ व्हाट इज कॉल्ड ड्राइंग? एनीवन? ड्राइंग क्या होता है? हाँ बोलो. यस यस. ओके, तो 45 में से एक दो जन ही है, बाकी सब सो रहे क्या? और हाँ, जिसका भी माइक चालू है बंद कर दो. पीछे वो पूजा और इसका आवाज आ रहा है. जिसके भी माइक चालू है पीछे जो पूजा हो रही है उसका भी आवाज आ रहा है. ओके, सो नाउ ड्राइंग. ओके, सो हाँ, हाँ बोलो. हाँ. Okay, so here definition is that drawing means amount or goods, amount cash or goods. Okay, cash or goods withdraw for personal use from the business is called drawing. Okay, तो उसमें अमाउंट भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है और गुड्स भी हो सकता है. ओके, सो गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, गुड्स और कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग. ओके, तो आप इसमें गुड्स भी विड्रॉ कर सकते हो और इसमें आप कैश भी विड्रॉ कर सकते हो. तो जो भी आपने कैश विड्रॉ किया है, गुड्स विड्रॉ किया है, ओके, पर्सनल यूज के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग. ओके, बराबर. तो आप इसमें गुड्स भी विड्रॉ कर सकते हो पर्सनल यूज के लिए. एग्जाम्पल की सपोज इफ योर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ. ओके, तो वो क्लोथ आप किसी को शादी में गिफ्ट में दे रहे हो. ओके, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग. ओके, तो यहाँ पे आप गुड्स भी विड्रॉ कर सकते हो और कैश भी विड्रॉ कर सकते हो. सो व्हेन वी विड्रॉ कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग. ओके, सो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगा? अमाउंट कैश और गुड्स विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, इट इज कॉल्ड ड्राइंग. ओके, तो ये वो आपका ड्राइंग हुआ. ओके, नेक्स्ट वन दैट इज द लाइबिलिटी. ओके, लाइबिलिटी क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज लाइबिलिटी? यस. हाँ, हेलो. हाँ, व्हाट इज कॉल्ड लाइबिलिटी? यस यस. हाँ बोलो. हेलो. हाँ बोलो. यस.
So loan taken from bank, then unpaid amount is called your liability. Okay. हाँ, लोन बोरो करना बैंक से, वो भी दैट्स कॉल्ड लोन. ओके. सो लोन टेकन फ्रॉम बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड लाइबिलिटी. और जो अनपेड अमाउंट है, आपने पे नहीं किया, दैट ऑल अमाउंट इज कॉल्ड लाइबिलिटी. ओके. तो लाइबिलिटी दो तरह की होती है, एक तो इंटरनल लाइबिलिटी और दूसरी एक्सटर्नल लाइबिलिटी. इंटरनल लाइबिलिटी यानी जो कंपनी के अंदर हो, जो आपको पेमेंट देना बाकी हो, एग्जांपल सैलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. दे आर कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी. ओके. और एक्सटर्नल में क्या होता है, जो आउटसाइड का पेमेंट बाकी है, चाहे जैसे सप्लायर का पेमेंट बाकी हो, लोन लिया है उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट बाकी हो, सो दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटी. ओके. तो इंटरनल में भी दो होती है, एक तो करंट लाइबिलिटी और दूसरी नॉन करंट लाइबिलिटी. तो करंट लाइबिलिटी क्या होती है कि जो 12 मंथ के अंदर आपको पे करनी है, दे आर कॉल्ड करंट लाइबिलिटी. ओके. और 12 मंथ्स के ज्यादा टाइम पीरियड हो आपके पास, दे आर कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटी. तो इंटरनल में भी क्या होता है, करंट लाइबिलिटी होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है. और एक्सटर्नल में भी क्या होता है, करंट लाइबिलिटी होती है और नॉन करंट लाइबिलिटी होती है. तो दोनों में करंट लाइबिलिटी होती है और नॉन करंट लाइबिलिटी होती है. दे आर कॉल्ड लाइबिलिटीज. इन शॉर्ट, लाइबिलिटी मीन्स द अनपेड अमाउंट प्लस द अमाउंट इज विच इज नॉट पेड इज कॉल्ड लाइबिलिटी. ओके. बराबर. चाहे वो फिर बैंक लोन हो, चाहे वो आपके एक्सपेंसेस हो, जो भी हो. ओके. द अनपेड अमाउंट इज कॉल्ड लाइबिलिटी. ओके. चाहे वो लोन भी हो सकता है, उसका इंटरेस्ट भी हो सकता है, सप्लायर का पेमेंट भी हो सकता है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड लाइबिलिटी. ओके. Next one, that is the internal liability and external liability. Okay. Now what is called internal liability? What is called internal liability? Anyone? Yes. उसका एग्जाम्पल कोई? हाँ, इसके अलावा एग्जाम्पल कैपिटल. ओके. So capital, now see here, in business, owner and business both are different person. Okay. In business, owner and business is both are different. Okay. Example, बात कर लो Reliance. Okay. So Reliance is a artificial persons created by law. Reliance is a artificial persons created by law. Okay. And Mukesh Ambani is the owner of that Reliance. Mukesh Ambani is the owner of that Reliance. So Mukesh Ambani is a natural person. So here, in viewpoint of accounts, both are different persons. So Reliance is the artificial person created by law, and Mukesh Ambani is the natural person. Okay. तो मुकेश अंबानी क्या है, नेचुरल पर्सन है. सो बोथ आर डिफरेंट. ओके. तो मुकेश अंबानी ने कैपिटल दिया है बिजनेस को. किसको दिया? रिलायंस को दिया है. ओके. तो बिजनेस की वो लायबिलिटी है कि जब रिलायंस बंद होगा, बिजनेस की वो लायबिलिटी है कि जब बिजनेस बंद होगा, तो सेम कैपिटल इज गिवन टू द मुकेश अंबानी. ओके. सो दैट्स व्हाई कैपिटल इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी. दैट्स व्हाई कैपिटल इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी. तो कैपिटल किस में आता है? इंटरनल लायबिलिटी में आता है. बराबर. So they are called internal liability. For example, when we started new business, okay, we invest we invest in cash or bank balance, maybe assets, land, building, machinery we brought. Okay, so that whole amount is called capital. Okay, and that capital is called internal liability, because when we wind up the business at that time, the business is given same capital to the owner back. Okay, so that's why it is called internal liability. Okay, so capital is also called internal liability. तो ये बड़ा एग्जांपल है इंटरनल लाइबिलिटी का. ओके. सो नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इज एक्सटर्नल. एक्सटर्नल तो वेरी इजी. ओके. बैंक लोन है, सप्लायर का पेमेंट है, दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटी. टैक्स आपने पे नहीं किया, दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटी. ओके. सो इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी, क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ. नेक्स्ट वन, दैट इज अ current liability and non-current liability. Now, what is current liability? The payment is paid up to 12 months. The outstanding payment is paid up to 12 months. They are called current liability. Okay, 12 महीने के अंदर आपको जो पेमेंट पे करना है, दे आर कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी. ओके. और 12 महीने के बाद जो आपको लॉन्ग टर्म पे पेमेंट पे करना है, दे आर कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटी. बराबर है. करंट लायबिलिटी यानी जो आपको विथ इन
6 मंथ, विथ इन 12 मंथ्स, विथ इन 3 मंथ्स में आपको जो पेमेंट करना है, दे आर कॉल्ड करंट लायबिलिटी। ओके, और जो आपको 12 महीने के बाद जो पेमेंट करना है, दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। सो देर आर करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी, दे आर कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी, सॉरी। सो 12 महीने के बाद जो आपको पे करना है, दे आर कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी। बराबर है? तो ये हुआ आपका करंट लायबिलिटी और दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी। बराबर। जैसे करंट लायबिलिटी का एग्जांपल ले लो, क्या होगा? सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, 1 महीने का आपने सैलरी बाकी है, आपने पे नहीं किया, दे आर कॉल्ड करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी यानी जो लॉन्ग टर्म में 12 महीने से ज्यादा है, जैसे टर्म लोन है। ओके, टर्म लोन ऑलवेज मोर देन 3 ईयर्स। ओके, तो टर्म लोन होता है वो आफ्टर 3-5 ईयर्स से स्टार्ट, आफ्टर 3-5 ईयर्स के बाद ही वो स्टार्ट होता है। यानी टर्म लोन यानी इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 3 साल और 5 साल से ज्यादा होता है, दे आर कॉल्ड टर्म लोन। So term loan is also called non-current liability. Okay, term loan is also called non-current liability. तो ये हुआ आपका करंट लायबिलिटी और दूसरा हुआ आपका नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट इज एसेट्स। ओके, अभी एसेट्स क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज एसेट्स? या एग्जाम, यस, प्रॉपर्टी, यस। तो क्या होता है वो? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, दे आर कॉल्ड एसेट्स। ओके, बराबर है। नाउ ओपन योर नोटबुक एंड राइट डाउन द, ये एसेट्स थोड़ा बड़ा है, ओके, तो लिखना पड़ेगा आपको। ओपन योर नोटबुक्स एंड टेक योर पेन एंड राइट डाउन एसेट्स। ओके, so all of you open your notebooks, take a pen and write down heading assets. Okay, उसमें लिखो there are main 4 types of assets. Write down there are main 4 types of assets. Number one, number one, fixed assets. Number one, fixed assets. Okay, तो इसमें 4 टाइप है। ओके, उसमें नंबर वन क्या होगा आपका? फिक्स एसेट्स होगा। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्या होगा आपका? फिक्स एसेट। सेकंड होगा आपका इन्वेस्टमेंट। थर्ड वन होगा आपका करंट एसेट्स और फोर्थ वन होगा आपका फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, तो इन चारों को आपको डिवाइड करना है, सो उसमें आपको लिखना भी है। सो फर्स्ट हेडिंग दैट इज योर फिक्स एसेट्स। ओके, फर्स्ट हेडिंग दैट इज अ फिक्स एसेट्स। ओके, और उसमें भी वापस 2 हेडिंग अलग है। उसमें लिखो वापस फिक्स एसेट लिखा आपने, और उसमें लिखो there are 2 main types of fixed assets. Write down there are 2 main types of fixed assets. First one tangible, first one tangible, and second intangible. First one tangible, and second one intangible. Both the assets are important. Both the assets are important. हाँ बोलो। Okay, there are main 2 types of fixed assets. There are 2 main types of fixed assets. First one tangible assets, and second one intangible assets. उसके नीचे लिखो both the assets are important, both the assets are important, therefore it is necessary, therefore it is necessary to learn in detail, to learn in detail, to learn in detail. Number one, number one, tangible assets. Number one, tangible assets.
नंबर वन, टेंजेबल एसेट्स लिखा आपने? हाँ, टेंजेबल एसेट्स मीन्स, टेंजेबल एसेट्स मीन्स which can be, sorry, tangible asset means they have physical existence. They have physical existence. They have physical existence and touch easily, okay? And can touch easily. And can touch easily and sellable in the market. And sellable in the market. क्या था? And sellable in the market. And sellable in the market. क्या था? अभी एक जन रिपीट करो भाई, जो मैंने लिखा है आपको मैंने। हाँ, जिसने लिखा वो रिपीट करो अभी। Sellable, uh, yes, very good. And sellable in the market. Example, example, first one, land, okay? Example, first one, land. लिखा आपने? First one, that is land, okay? Now, land क्या होता है कि जो कंपनी ने परचेस किया है कंपनी के नाम पे, नॉट ऑन पर्सनल नेम ऑफ द ओनर, not for the personal name of the owner, but the land is purchased on behalf of company's name. That should be recorded in books of account only. तो जो कंपनी के नाम पे जो लैंड परचेस किया है वही रिकॉर्ड करेंगे. इफ लैंड परचेज ऑन पर्सनल नेम, दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. ओनली the land is purchased on company's name, that is recorded in books of account. Okay, that is called land. Okay, तो जो लैंड आपने परचेस किया है कंपनी के नाम पे वही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना है. जो ओनर है उसके पर्सनल नाम पे जो परचेस किया है तो वो लिखना नहीं है. ओके, बिकॉज कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन. नहीं, आपको उसमें लिखना नहीं, सिर्फ लिखना है लैंड. ओके, आपको कुछ लिखना नहीं उसमें, सिर्फ इतना लिखना है एग्जाम्पल लैंड. ओके, तो लैंड क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ कि लैंड क्या होता है. ओके, और कौन सा लैंड बुक में से रिकॉर्ड होता है. आई एम एक्सप्लेनिंग दैट. ओके, आपको कुछ लिखना नहीं है, जस्ट राइट ऑन एग्जांपल लैंड. ओके, तो लैंड आप कौन सा लिखोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में? व्हेन इट इज अ परचेज ऑन बिहाफ ऑफ कंपनीज नेम, नॉट फॉर द ओनर्स पर्सनल नेम, बिकॉज company's name is also a artificial persons created by law. Okay, so when any land purchase on behalf of company's name, that should be recorded in books of account. Okay, ये हुआ आपका लैंड. सेकेंड वन, दैट इज अ बिल्डिंग. सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज अ बिल्डिंग. ओके, आपको बिल्डिंग लिखना है सिर्फ, और कुछ लिखना नहीं है. सो एनी बिल्डिंग परचेज ऑन बिहाफ ऑफ कंपनीज नेम, दैट इज इंक्लूडेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. ओके, जो भी कंपनी ने बिल्डिंग परचेज किया है वो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना है. सो बिल्डिंग इज अवर एसेट्स. ओके, बिल्डिंग इज अवर एसेट्स, सो दैट्स व्हाई इट इज रिकॉर्डेड इन टेंजेबल एसेट्स. ओके, उसके बाद जो एग्जाम्पल है बिल्डिंग के बाद, दैट इज अ मशीनरी. Machinery. Okay, so when there is a manufacturing unit, the need of machinery is there. Okay, so if you purchase any machinery on behalf of company's name, that should be recorded in books of account. Okay, तो मशीन आप रिकॉर्ड करोगे कौन सा, कि जो आप इसमें से आप जो मैन्युफैक्चरिंग करोगे विद द हेल्प ऑफ दैट मशीन, सो दैट मशीन इज इंक्लूडेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, तो वही मशीन आप ऐड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में. ओके, so next one, that is a vehicles. Next one, example vehicles. Okay, तो व्हीकल क्या होता है कि जो फॉर एग्जांपल कंपनी के पास जो भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल हो, एग्जांपल चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो कार हो. ओके,
all are included in vehicles. And if any vehicles purchased by company on behalf of company's name, that should be recorded in books of accounts. Okay. तो जो व्हीकल्स कंपनी ने परचेस किया है, ओके, बिहाफ ऑफ कंपनीज नेम, चाहे वो कार हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो बाइक हो, ओके, दैट इज रिकॉर्डेड अंडर द हेडिंग व्हीकल्स. ओके, तो उसको व्हीकल्स की हेडिंग में रिकॉर्ड करेंगे. सो ऑल व्हीकल्स आर एसेट्स फॉर द कंपनी एंड दे आर टेंजेबल एसेट्स ऑफ द कंपनी. ओके, सो व्हीकल्स के बाद होगा आपका दैट इज द कंप्यूटर्स. ओके, व्हीकल्स के बाद क्या होगा आपका नेक्स्ट एसेट्स कंप्यूटर्स. ओके, तो कंप्यूटर तो एवरीवन नो कि व्हाट इज कंप्यूटर. ओके, so nowadays in offices we are using laptop also. Okay, so company is also providing laptop to their employees also. Okay, so whatever computers and laptops purchased by the company on behalf of company's name, that is included in your books of account. Okay, तो जो कंपनी ने कंप्यूटर परचेज किए हैं और लैपटॉप परचेज किए हैं, ओके, दैट इज इंक्लूडेड इन योर books of account because nowadays now pain is not operated in the office. Okay, nowadays I am talking about Ahmedabad only. I am not talking about US and UK. I am talking about Ahmedabad. In Ahmedabad also, the pen is not used in the offices. Nowadays, everywhere there's a computer. Okay, so even in morning when we reach your office, okay, suppose if you are doing job, okay, in that case also you have to attend the your presence with the help of fingering. Okay, so pen is not used nowadays in the offices. Everywhere there is a computer and laptop. Okay, so that's why nowadays computer knowledge is must. Okay, so now whatever computers and laptop is purchased on behalf of company's name, that is recorded in your books of accounts. So computer is also assets for the company and they are also called tangible assets. Okay. After that there is a software. Okay. After that there is a software. Okay. Now what is software? Anyone? आपको तो पता ही होगा. What is software? Yeah. Okay. So window is also a software. Okay. So without software, there is no use of laptop and computer. Okay. Without software, there is no use of computers and laptop. Okay. Window is also a software. Okay. सो विंडो का जो प्रोग्रामिंग है वो इतना इजी नहीं है. ओके, नाउ सी हियर विंडो में बहुत सारी चीज़ दी है. ओके, बहुत सारे मेन मेन्यूज दिए, उसके बाद सब मेन्यूज दिए. ओके, वन बटन्स रिक्वायर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ प्रोग्राम. जो सिर्फ आप एक बटन पुश करते हो विंडो में, तो उसके पीछे 10,000 लाइन का प्रोग्राम होता है, तब जाके वो बटन ऑपरेट होता है. ओके, तो इतना सारा जो हार्ड वर्क है वो आपको फ्री में मिलने वाला है? नो. तो उसका आपको पेमेंट करना होगा. किसको करोगे आप पेमेंट? बिल गेट्स को करोगे. ओके, बराबर है. माइक्रोसॉफ्ट जो उसकी कंपनी है, सो विंडो विंडो जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया. ओके, सो अगेंस्ट दैट यू हैव टू पे मनी टू द माइक्रोसॉफ्ट. ओके, अभी जो आप घर पे बैठे हो, आपने लैपटॉप यूज किया, आपने कंप्यूटर यूज किया, ओके, तो वहां पे तो विंडो आपको फ्री में मिल गया. ओके, दैट इज अ क्रैक वर्जन ऑफ विंडो. ओके, तो वो इलीगल है वो. बट व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस, ओके, और आपका कोई ऑफिस होगा और ऑफिस लेके बैठे हो, तो उसमें आपको लाइसेंस वर्जन विंडो ही यूज करना है. लाइसेंस वर्जन नहीं करोगे, देयर इज अ फाइनेंशियल पनिशमेंट अगेंस्ट दैट. ओके, तो किसी भी टाइम में माइक्रोसॉफ्ट में से इंक्वायरी आ सकती है आपका जो विंडो है वो लाइसेंस वर्जन है कि नहीं, और है तो आपकी रिसिप्ट शो मी द रिसिप्ट. ओके, आपने जो पेमेंट किया है, बिकॉज दैट पेमेंट यू हैव टू डू एवरी ईयर. आपको हर एक साल में आपको इसका पेमेंट करना ही है. ओके, माइक्रोसॉफ्ट को. इसलिए बिल गेट्स का जो है वो, इसलिए वो वर्ल्ड का नंबर 1 है, क्योंकि रात दिन उसके अकाउंट में ये सारे जो पैसे हैं वो आते रहते हैं. दिस इज ओनली वन एग्जांपल ऑफ विंडो. वैसे बहुत सारे अलग अलग दे आर डूइंग प्रोग्राम्स इन बिग बिग कंपनीज. ओके, बराबर. तो जो पैसा है उसके अकाउंट में जमा रहता है, आता रहता है, इसलिए ही इज नंबर 1 इन होल वर्ल्ड. वो 10th फेल है. वो जो बंदा है वो 10th फेल है. बट जितने भी वर्ल्ड के रैंकर्स है, जो टॉप ब्रेन्स है, इज परचेजिंग दैट ब्रेन. ओके, एवरी ईयर. तो एवरी ईयर वो 100 बंदों को पूरे वर्ल्ड में से अपॉइंट करता है अपनी कंपनी में.
और वो चेक रखता है सामने कि आपकी ताकत हो उतना इसमें अमाउंट भरो, काम मैं आपको दूंगा। ओके, बराबर। आपकी जितनी ताकत है वो ब्लैंक चेक में आपकी अमाउंट भरो, वो आपका सैलरी होगा पर ईयर का, बट सामने काम मैं आपको दूंगा कि वो काम आपको करना होगा। ओके, सो एवरी ईयर ही इज परचेजिंग टॉप 100 ब्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड एवरी ईयर। सो दैट्स वाई वो उसका जो नंबर वन, दैट्स वाई इज द नंबर वन इन द होल वर्ल्ड। ओके, वो खुद 10 फेल है वो, बराबर। सो सॉफ्टवेयर का जो आपको पेमेंट करना है, सो दैट्स वाई इट इज इंक्लूडेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो वैसे विंडो एक ही नहीं होगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू types of business the softwares are using in a company. So whatever softwares you have purchased in the business, that all software is included in the books of accounts. Okay, and that is included in the assets. Okay, that's why it is included in the assets. Okay, तो सारे आपको सॉफ्टवेयर्स इसमें प्लस करने हैं। ओके, तो ये हुआ आपका टेंजेबल। उसके नीचे नेक्स्ट दैट इज द सेकंड वन इज इंटेंजिबल एसेट्स। हेडिंग दे दो इंटेंजिबल एसेट्स। लिखा आपने इंटेंजिबल एसेट्स? ओके, सो देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो यहाँ पे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट और चौथा गुडविल। ओके, so there are four main types of intangible assets that will be discussed in detail tomorrow. Okay, at tomorrow 8:10. Okay, तो ये चारों चार intangible assets है, is very important for you, that will be discussed tomorrow morning at 8:10. Okay, so if there is any doubt ask me. Okay, because your time is now over. Okay, 10:51 is here. Okay, so if any doubt you can